Good evening, everyone, and welcome back to another insightful session of Golden Chacha organized by EIRC. And we are addressing a critical aspect of GST today, and that is the GST litigation strategy, specifically focusing on defending notices and filing appeals. To start the session, I will request Kushal Agarwalji, our addressee of the day, to just give a brief and introduction, and then we will start the session with the speaker of the day, Rohit Prasad ji. So, over to you, Kushal Agarwalji. Thanks, Amit ji, for the opportunity and platform, and thanks EIRC for this opportunity for hosting such a as the name suggests, golden sessions for our esteemed members and for the professions we are serving to the nation. So as we have the session today for the GST notices, how we are going through the strategies. So as we know that the compliance part of the GST is an ongoing thing, but as a part of the litigations part and the other things which we have, that is the future of our profession. Because we are serving, we are the clients and the things which we serve, that depends, they are fully relying on us, they're relying on our profession, how we are serving to them. So like as the session, Rohit ji is with us, who will take us with this forward. His expertise will surely will help and guide us to take our things and get the key learnings out of that. So like this, I want just giving the want to address that, like be vigilant and be attentive to this session to get the insightful learnings on that part. Over to you, Amit ji. Thank you so much, Kusalji, for this brief and wonderful addressing to the audience and welcoming the Rohit Prasad ji as well. So, to start off, I will like to introduce the speaker of the day, and we are really honored to have with us CA Rohit Prasad ji. So, CA Rohit Prasad is a practicing chartered accountant recognized for his strong expertise in GST compliance and litigation across India. He holds the prestigious qualification of Certified Forensic Auditor as well as DISA from ICAI. He also holds the role of co-opted member of GST and Indirect Taxation Committee for EIRC for the year 24-25. Rohit began his career as a senior audit executive at ENY, where he developed a strong foundation in audit and assurance practices. He has hands-on experience serving clients across diversified sectors, including FMCG, manufacturing, and services. He has actively contributed to the CA profession and GST awareness by conducting numerous seminars, conferences, and workshops on GST across India. He also regularly contributes insightful articles to ICI branch newsletter and ACA magazine promoting awareness and clarity on the GST issue. Given his academic excellence, practical experience, and leadership within the profession, CA Rohit Prasad is truly a leading voice in the GST domain. So, without any further delay, let's welcome CA Rohit Prasad ji to share his expert insight on the GST litigation strategies, how to defend the notices, and also the filing of appeal. Over to you, sir. Floor is yours. Thank you. Thank you so much, Amit for such a wonderful as a host and my introduction. And my sincere thanks to my special addressee, Kushal Agarwal ji, for taking it forward and giving a brief introduction what the seminar is all about. And my heartful thanks to EIRC Chairman Mr. Vishnu Kumar Tulsian sir, along with all the committee members of EIRC for taking such an initiative and making sure that each and every chartered accountants, whether it's in tier 1 city, 2 or 3 city, so that they can be addressed and they can have a CPE learnings, which is unstructured and have a professional growth towards their career. So it's my humble thank you note to all of you. And with the permission of Mr. Amit Agarwal and Mr. Kushal Agarwal, I would like to take the opportunity further and become the presentable person in terms of defending notices and filing of appeals. So I think there is 33 audience. I think that's a pretty good number for me to go ahead with it. So let me just start with few things what my seminar will all be about. So basically, I'll be talking about defending notices and appeals of GST filing. So this 1 hour, मैं आपको एक चीज बोलता हूँ on a serious note and on a very friendly term.
अगर आपने जीएसटी का पोर्टल भी नहीं देखा है, इफ यू नॉट सीन अ जीएसटी पोर्टल टिल डेट, and if you are with me for the next 1 hour dedicatedly without any distractions, I can rest assure you sir or ma'am that next 1 hour के अंदर में आपको जीएसटी अपील फाइल कैसे करते हैं और फाइल कैसे करना चाहिए, ये आपको सीखने का मौका मिलेगा. And it's not what I am saying, it's what my deliverable will be saying to you, all of you. And I would start my presentation. So I just need few things from my people. That is thumbs up or maybe yes, no, anything like that sort of. I think the chat box is open, right? Yes, it is open to all. Yeah. So are we ready to take it forward? Yes, sir, we can go ahead. Okay. Yeah. So my screen is visible to all of you, sir? Yeah, Yes, it is visible, sir. it's visible. Okay, fine. So today we are, I think some technical issue is there. No, I think it's all right. No, Yeah. it is completely all right. Okay, fine. So we'll be starting with litigations. Now let me tell you what is litigations and why litigations come into place and what happens to litigations. So मैं आपको बताता हूँ GST was enacted on 1st July 2017 and from there the GST law came, right? So as per the government said, one nation, one tax. I say one nation, one tax, multiple litigations. If you can see from this slide, right, which I'll be presenting to you. So basically क्या है ना, जीएसटी में there are different type of returns, right? Different type of returns, different types of implementation of laws, and lot of things are there. What I want to convey to you कि हमें litigations क्यों आता है? Why there is GST litigations? Why come? So let me tell you one small thing about it. 17 taxes were subsumed across nation to make one tax, and GST was implemented on 1st July 2017. इतने सारे टैक्सेस को अगर आप हटा के एक टैक्स बनाते हो, so definitely the provisions will be complex, interpreted in multiple ways, disagreements होगा, and there is the return का mismatch. You know how many returns are there in GST? Let me tell you just in a brief way. GSTR 1, GSTR 2B, GSTR 2A, GSTR 3B, GSTR 9, GSTR 9C, and so on and so forth, if I'm not getting into details of a lot of things. So ये सब auto-populated return, statement, annual reconciliation and all those. So most likely हमें जो मिलता है ना, generally जो differences आता है भाई, वो basically इसलिए आता था कि 3B 2A का mismatch है, right? GSTR 1 और 3B का आउटपुट का मिसमैच है. GSTR 3B में आपने जितना ITC लिया, 9 में आपका कम दिखा रहा है, या 9 9C में डिफरेंस है. अग्री? सो दिस इज व्हाट आवर मिसमैच ऑफ रिटर्न्स लीड टू लिटिगेशंस. आप जब भी ऑफिसर के पास जाते हो, कोई भी डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव में जाते हो, आप 17 18 18 19 19 20 एंड ऑनवर्ड्स अगर आप देखोगे लास्ट 5 years का जितना भी लिटिगेशंस आया है, द क्रक्स पॉइंट वाज टू ओनली. एक तो आपका रिटर्न्स का मिसमैच, वन इज द रिटर्न मिसमैच, वेदर इट्स 1 3B 9 9C एनीथिंग, बुक से मैच मिसमैच. द सेकंड वाज 16.4 का जो मैटर व्हिच वाज अमेंडेड इन 16.5 एंड henceforth. ओके, नाउ लेट मी टेल यू कि लिटिगेशंस आने के वजह में आपको ये तो पता चल गया कि लिटिगेशंस क्यों आ रहा है जीएसटी में और लिटिगेशंस को हैंडल कैसे करना है. सो माय पीपीटी विल बी वन ऑफ द मेजर एरिया जहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगा. विल डीप डाइव बेसिकली आस्ते आस्ते करके, लाइक slowly and gradually I will take you step forward and forward, and then in the end you will get a roller coaster ride, which I can say, जहाँ पे you will get to know lot of crux and how to prepare a appeal or filing of appeals. Okay, so next is my point is basically what are the key players of GST. So SAC is surrounded by state tax officer, central tax officer. He can be an adjudicating authority or appellate authority. So there are multiple players in GST litigation. आपको कभी state tax SGST CGST है, कभी state tax officer से notice आ गया, फिर कभी आपको central tax officer से notice आ गया. वो आपका adjudicating authority भी हो सकता है, appellate authority भी हो सकता है, right? So these are the different levels of thing. Okay. Now let me tell you GST का divisions, how divisions of GST department is made. So GST has a different division. So what we say now,
अगर आप किसी से पूछो, सर क्लाइंट आता है आपके पास और आप पूछते हो कि नोटिस कहाँ से आया है, वो बोलता है सर जीएसटी डिपार्टमेंट से आया है। बट एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज अ प्रैक्टिशनर ऑफ अ जीएसटी, यू शुड अंडरस्टैंड कि इसने कौन सा डिपार्टमेंट से नोटिस आया है। नाउ लेट मी टेल यू फ्यू थिंग्स। दे आर जीएसटी पॉलिसी विंग जो रूल्स लॉज पॉलिसीज बनाते हैं। इन एन एवरेज एवरी मंथ जीएसटी से हमें 10 to 12 नोटिफिकेशन या सर्कुलर या कोई भी हमें नया रूल्स पता चलता है। दिस इज द प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ जीएसटी। सीपीआईसी इज अ बोर्ड विच इशू नोटिफिकेशंस एंड सर्कुलर्स। स्टेट डिपार्टमेंट ऑफिसर्स होते हैं, सेंट्रल टैक्स डिपार्टमेंट होते हैं। डीजीजीआई इज अ जीएसटी डिपार्टमेंट जहाँ पे डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस बोला जाता है, जहाँ पे आप सुनते होंगे जीएसटी रेड हुआ, सर्च, सीजर एंड अरेस्ट। So DGGI has the power to arrest, and mainly DGG officers arrest in cases of above 5 crore as well. Okay, next is we always come often कि सर हमारा GST audit हो रहा है. Whenever we come across a term audit हो रहा है, we always think of a chartered accountant कि वो audit chartered accountant कर रहा है. But यहाँ पे GST में there is section called section 65 जहाँ पे department comes into the role and does your audit. So audit और normal scrutiny notice में क्या difference होता है, मैं आपको एक छोटे से ब्रीफ में बताता हूँ। ऑडिट में क्या होता है कि आपको डिपार्टमेंट आके बोलता है कि सर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स, सारे पेपर वर्क, सारा चीज़ आप लेकर आओ, हम लोग स्टडी करेंगे, विल फाइंड द लूप होल्स एंड विल प्रिपेयर अ नोट। हम लोग आपको एक फाइनल ऑडिट रिपोर्ट देंगे कि आपका ये डिस्क्रिपेंसीज है। वेयर एज अदर केसेस में क्या होता है कि आपके पास डिपार्टमेंट आपके पास नहीं आता है, वो आपका पोर्टल देखता है, आपका रिटर्न्स को स्क्रूटनाइज करता है, आपके रिटर्न्स को चेक करता है और उसके बेसिस में एक सपोज बनाता है कि सर आपका 2B में आपने ज़्यादा लिया, 3B में आपका इनपुट कम है। सो वो एक डिफरेंट पैरामीटर होता है। सो ऑडिट इज अ होल अबाउट चीज़, वो सारी चीज़ों का ऑडिट होता है वहाँ पे कि आरसीएम लिया, होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, 3 1 3B का डिफरेंस क्या है, एंड प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स का होता है। वेयर नोटिस में क्या होता है, आपको पर्टिकुलर डिस्क्रिपेंसी दे दिया कि सर आपका ये डिस्क्रिपेंसी है और इस पर हम लोग नोटिस करेंगे। सो देयर इज अदर एविजन, एंटी एविजन विंग, एडजुडिकेशन विंग, अपील का एक विंग होता है एंड डिफरेंट विंग्स आते हैं। सो मेरा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि अगर आपको कभी भी नोटिस आ रहे हैं, सो वो नोटिस किस वजह से आ रहा है। वेदर ये ऑडिट कमिश्नर ने जीएसटी ऑडिट किया, जीएसटी ऑडिट हैंडल होने के बाद फिर एक नोटिस आया उस ऑडिट डिपार्टमेंट से आया है, या आपने कोई टर्नओवर को सप्रेस कर दिया, सारा पैसा करंट अकाउंट में नहीं लेके सेविंग्स अकाउंट में लेके बैठे हुए हैं, सप्रेशन ऑफ टर्नओवर कोशिश की जहाँ पे आपको 20 लाख आप सर्विस का टर्नओवर है, आपने उसमें 19 लाख करंट अकाउंट में लिया और 10 लाख रुपए आपने सेविंग्स में ले लिया, ये सोच के कि आप किसी को पता नहीं चलेगा। एंटी इवेजन विक को पता रहता है, वो वहां से इन्वोक करते हैं। एडजुडिकेशन विक जो जनरली एडजुडिकेशन होता है, राइट, एंड डिफरेंट। डीजीजीआई इज अ सीरियस डिपार्टमेंट जहाँ पे रेड होता है, तो वो होता है। तो जब भी आपको कभी भी नोटिस आए, व्हेनेवर यू रिसीव अ नोटिस फ्रॉम अ जीएसटी डिपार्टमेंट, यू हैव टू मेक श्योर कि वेयर विच डिपार्टमेंट हैज इन्वोक्ड द नोटिस टू यू, राइट। Am I all clear to all of you? If I can get a chat reply, so I think that would be much better for me to understand that we are on the same page. Okay. So next we are moving on to one of the important things. So now I'll tell you what is the flow chart. So we always say na ki, yeah, sorry. So we always say कि सर नोटिस कैसे आएगा, डिपार्टमेंट आएगा एक लेटर लेकर और बोलेगा सर आइए ये लेटर है, इसका रिप्लाई करिए। व्हाट इज द प्रोसीडियर फॉर इट। हमें इनकम टैक्स हैंडल करे, हमने सर्विस टैक्स भी हैंडल किया है, हम लोग सब सीए फ्रेटर्निटी ने, राइट, वैट हैंडल किया है, बट जीएसटी का डायनामिक्स काफ़ी डिफरेंट है। सो आइए मैं आपको बताता हूँ कि फ्लो चार्ट का नोटिस कैसे आता है, किस टाइमलाइन पे आता है, उसका रिप्लाई किस फॉर्म में दिया जाता है, ठीक है। सो this is very important. Now I'll go ahead with it slowly and gradually with you all. So first we get a scrutiny notice, that is an ASMT 10। ये जनरली क्या होता है कि एक लेटर फॉर्मेट में भी हो सकता है कि आपको एक नोटिस आया कि सर, मैं एक ही एग्जांपल ले रहा हूँ 3B 2B का डिफरेंस बिकॉज वो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग रहा है। सो सर एक नोटिस आया SMT 10 में कि सर आपका 3B में आपने जो ITC लिया वो ज़्यादा है, 2B में कम है, ठीक है। उसके बाद व्हाट यू डू, यू मेक अ रिप्लाई इन SMT 10। आपने बोला सर हमारा ऐसा है कि हमारा जो 3B में लिया हुआ वो सेक्शन 16 को कंप्लाई करके लिया है और हमने इसका SMT 11 में रिप्लाई किया।
It's very rare, to be very honest, sitting on this podium and telling to all of you, it's very rare कि आपके रिप्लाई से वो ऑफिसर सेटिस्फाइड हो जाए और आपको एसएमटी 12 देके बोले सर आप, मैं खुश हूँ, आपका मैटर ड्रॉप हो जाएगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो रिप्लाई जब आप करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा आपका सॉलिड रिप्लाई क्यों ना हो, डिफिकल्ट टू मेक देम अंडरस्टैंड कि आपका रिप्लाई बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे है और एसएमटी 12 आ जाए। इफ ही और शी इज सेटिस्फाइड, आपको एसएमटी 12 में ये ऑर्डर ड्रॉप हो जाता है। सो चलिए एक बार फर्स्ट पार्ट को विल टेक अ रिविजन। एसएमटी 10 इज अ बेसिक नोटिस, आपको जो नोटिस मिलता है स्क्रूटनी नोटिस जिसको हम लोग बोलते हैं। एसएमटी 11 में आप रिप्लाई करते हो, एएसएमटी 12 में वो मैटर ड्रॉप हो जाता है। सपोज ऑफिसर आपका देखा रिप्लाई एएसएमटी 11 में एंड ही सेज नो, ही इज नॉट सेटिस्फाइड, व्हाट नेक्स्ट? So he issues a new notice, that is intimation of tax paper, जिसे मैं बोलते हैं जीएसटी प्री शो कॉज नोटिस, जिसका फॉर्म नंबर इज DRC01A। दैट इज वेयर द आपका स्क्रूटनी नोटिस का लेवल पार हो जाता है, प्री शो कॉज नोटिस पे आप एंटर करते हो। आपको प्री शो कॉज नोटिस आता है DRC01A में, आप उसको रिप्लाई करते हो DRC01A पार्ट बी में, एंड इफ योर रिप्लाई इज सेटिस्फैक्ट्री, आपका DRC05 आता है जहाँ पे आपका वो ऑर्डर को ड्रॉप किया जाता है। Are we on the same page, guys? So let me make you this understand this table, which is very important because अगर कोई भी स्टेज आपका छुटा तो आप इस पे चैलेंज कर सकते हो। सो पहला हो गया SMT 10 नोटिस, SMT 11 रिप्लाई, SMT 12 मैटर इज ड्रॉप। अगर मैटर ड्रॉप नहीं हुआ, प्री शो कॉज नोटिस DRC01A, उसमें रिप्लाई किया पार्ट बी में। अगर मैटर ड्रॉप हो गया DRC05। जस्ट इन केस मैं आपको बोलता हूँ, अगर आपका मैटर सपोज ड्रॉप नहीं हुआ, राइट, देन व्हाट्स नेक्स्ट? इफ योर मैटर इज नॉट ड्रॉप्ड, आपको मिलता है DRC01A, दैट इज नाउ DRC01, नॉट 1A। 1A इज प्री शो कॉज नोटिस, DRC01 इज शो कॉज नोटिस, जहाँ पे आपको बताया जाता है कि ये आपका मैटर DRC01 आया है, नाउ यू हैव टू मेक अ रिप्लाई। आप उसका रिप्लाई बनाते हो शो कॉज नोटिस का DRC06 में, मैटर ड्रॉप DRC05। इफ द मैटर इज नॉट ड्रॉप, यू गेट अ DRC07। सो नाउ वेरी इंपॉर्टेंट 2-3 फैक्टर्स। बहुत बार ऐसा होता है आपको प्री शो कॉज नोटिस नहीं मिला, DRC01A का नोटिस आपको नहीं मिला, you cannot challenge because that is voluntary by the department. But if you do not get a notice of DRC01, that is show cause notice, and you directly get a final order copy DRC07, ऐसे बहुत सारे केसेस में ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने SMT 10 डाला है, उसके बाद सीधा शो कॉज नोटिस नहीं दिया, हियरिंग नहीं लिया और डायरेक्टली DRC07 लेके ऑर्डर कॉपी आपको पकड़ा देते हैं। You can directly challenge it with the above authority, keep sir, we have not received any show cause notice and we have received the final order. So DRC07 is the final order. Now क्या होता है जब आपको SMT 10 हो गया, DRC01A, DRC0 till DRC07 आप रहता है a single penny in terms of pre-deposit fees or something like that. Now the game changes from DRC07. DRC07 जैसे ही आ जाता है और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का पावर खत्म हो जाता है वहाँ पे। जैसे ही एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी पावर खत्म हो जाता है तो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं FFA या अपीलेट अथॉरिटी आप जिसको बोल सकते हो, वो ओपन हो जाता है। सो नाउ वंस यू रिसीव अ DRC07, यू हैव टू गो टू फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी, जहाँ पे आपको जाने के लिए 10% ऑफ द टैक्स एंड डिस्प्यूट का पेमेंट करना पड़ता है। Now I will tell you the calculation of 10% of tax and dispute क्या है. I have an elaborative presentation on that also. Once you do an appeal by filing form APL01, you get an acknowledgement in APL02 कि yes, your appeal has been acknowledged. Appeal acknowledge का मतलब ये हो गया कि appeal आपका acknowledge किया गया, admit हो जाएगा. You can go for the further hearings depending on the show cause notices issued to you. So this flowchart is very important for you. Now just giving a brief reminder to all of you because it's very important. ASMT 10 notice, scrutiny notice, ASMT 11 reply, ASMT 12 matter is dropped completely. If the matter is not dropped, you get a DRC01A, that is pre-show cause notice, it's voluntary, not mandatory. Then you make a reply to that part B में, अगर वहाँ से वो satisfied होते हैं तो मैटर ड्रॉप हो जाता है, अगर नहीं satisfied होते हैं they issued a show cause notice, that is mandatory as per the GST law. Once you get a DRC01A, that is show cause notice, you make a reply, submit,
DRC 06 order satisfied, DRC 05 में matter dropped. If the matter is not dropped, you receive a adverse order in DRC 07. Now, once you receive a final order, you have to go to first appellate authority by filing GST APL 01. So in the end, I will tell you how to file APL 01, what data points are important while keeping in mind for the APL 1. Once you file APL 1, आपका acknowledgement डिपार्टमेंट की तरफ से आता है APL 02 का, जहाँ पर डिपार्टमेंट आपको ये बोलता है कि सर, as you have filed an appeal within the time frame as prescribed by 107 section, we have acknowledged your appeal in APL 02. Okay. Now we are coming to some other points. Okay. Now, when appeal needs to be filed, that is something which I would like to just tell you कि अपील आपको कब फाइल करना है और कैसे फाइल करना है. Just a second. So, appeal file करने के लिए we have to keep 2-3 things in mind. The first thing in mind should be your order in original, that is DRC 07, should be there in the portal, or maybe you got a physical copy of it. एक समरी ऑर्डर आता है, दो तरह का आपके पास एक ऑर्डर आता है. एक आता है DRC 07 जहाँ पे उन्होंने पूरा कहानी लिखा होता है कि वाई योर अपील, वाई योर ऑर्डर हैज बीन पास्ड, आपके शो कॉज नोटिस के रिप्लाई के बाद भी. एंड देयर इज समरी ऑर्डर वेयर दे ओनली मेंशन द टैक्स अमाउंट. सपोज अमाउंट कितना था, डिस्प्यूटेड अमाउंट कितना है, दे मेंशन द 2 पेजेस हमें समरी ऑर्डर. सो ये दोनों आपको मिलता है ऑर्डर कॉपी में. एंड विद इन द 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर of the adjudicating final order of DRC 07, you are supposed to file APL 01. Now that is what I am trying to mention you. It's very important that when you file an appeal, you have to mention that this needs to be filed within 90 days from the DRC 07 का date. Okay, suppose अगर मैं बोलूँ आज इज 4th of August, right? 4th August में आपका DRC 07 का डेट आ गया. आपको 4th August को छोड़ के 5th August से 90 days का कैलकुलेशन करके you have to file the appeal. Now, while filing the appeal, you have to pay a pre-deposit of 10% of tax and dispute. Earlier, it was a confusion in the beginning when the appeal forum was formed कि सर हमें जो pre-deposit करना है, क्या हम इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से पेमेंट कर सकते हैं? Yes, you can use your electronic cash ledger and credit ledger. Suppose आपको pre-deposit पेमेंट करना है 1 लाख रुपए का, आपका 80,000 रुपीज क्रेडिट लेजर में पड़ा हुआ है, आप 80,000 फुल का फुल यूज कर सकते हैं और कैश लेजर से आप 20,000 यूज कर सकते हैं. सो देयर इज नो लिमिटेशन कि आपको कितना इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर यूज करना है, कितना इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर यूज करना है. यू आर फील फ्री टू यूज एनी अमाउंट ऑफ क्रेडिट और कैश लेजर इन द अपील फोरम. देयर आर लॉट ऑफ कंफ्यूजन अर्लियर कि सर अगर हमें ऑर्डर आया फिजिकली, हमारे पास एक कॉपी आया फिजिकली, तो हमें क्या अपील फिजिकली जाके फॉर्म फाइल करना है या ऑनलाइन होगा? टू मी एंड टू द लॉ, इट्स ओनली ऑनलाइन सबमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मोड. यू नीड टू सबमिट द APL 01 कॉपी अपील का. यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू सबमिट अ फिजिकल कॉपी. अर्लियर इट वॉज सेड कि अगर आपको फास्ट हियरिंग कराना है, सो इट इज़ एडवाइजेबल कि आप ऑनलाइन फाइल कर दो एंड देन यू टेक एन ऑनलाइन कॉपी का प्रिंट आउट लेकर आप एक फिजिकल कॉपी अपने जुरिसडिक्शन ऑफिस में जाके उसको जमा कर सकते हैं. ओके. नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑर्डर. मैं बोलता हूँ 2 तरह का ऑर्डर आता है. आपके पास एक क्लाइंट आता है, 2-3 मैटर आप समझिए, तो थोड़ा सा ये ट्रिक है. नाउ वी आर थोड़ा सा स्टार्टिंग विद द डीप डाइविंग थिंग. ओके, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑर्डर. वन इज अपीलेबल ऑर्डर, वन इज नॉन अपीलेबल ऑर्डर्स. अपीलेबल ऑर्डर्स वो होते हैं जिसके पास आपको DRC 07 मिला या जो भी ऑर्डर मिला, यू गो टू द अपील कि हाँ इस मैटर को लेकर मैं अपील में जा सकता हूँ. नॉन अपीलेबल ऑर्डर्स वैसे ऑर्डर्स होते हैं जिसके लिए आप अपील में जा ही नहीं सकते. यू कैन नॉट गो टू द फोरम ऑफ अपील. सो अगर आपका रजिस्ट्रेशन ग्रांट का कैंसिलेशन हो गया, यू कैन गो टू द अपील. रिफंड का रिजेक्शन हो गया, अपील में जा सकते. कोई डिमांड ऑर्डर आया, डिटेंशन ऑर्डर आया, कन्फिस्केशन ऑर्डर आया, यू कैन गो फॉर द अपील बिकॉज यहाँ पे आपको DRC 07 मिला. नाउ आपके पास सपोज एक क्लाइंट आया, ठीक है, बोला सर ऐसा है कि मेरे पास एक ऑर्डर है पर्टेनिंग टू सीजर ऑफ डॉक्यूमेंट्स. कोई आपका ऑफिसर आया रेड के टाइम, उसने क्या किया, सीजर कर दिया बुक्स वुक्स को. वो आपके पास आता है, सर मेरे पास एक ऑर्डर है, आप अपील में जाइए. आप उसको बोलते हैं हाँ हाँ इसको लेकर हम लोग अपील में जाएंगे. तो ऐसा नहीं हो सकता. दे आर 4 एक्सेप्शंस
जिसके अगेंस्ट में आप अपील में जा नहीं सकते हैं। द अपील फोरम इज नॉट देयर। सपोज क्या होता है, कमिश्नर हैज द पावर कि वो आपका मैटर एक ऑफिसर को हटा के दूसरे ऑफिसर को ट्रांसफर कर दिया। वंस योर मैटर गेट्स ट्रांसफर फ्रॉम सपोज मिस्टर ए टू मिस्टर बी, आप कम एक ऑर्डर आता है कि भाई आपका मैटर मिस्टर ए नहीं हेयर करेंगे, मिस्टर बी हेयर करेंगे, सुनेंगे, एंड यू वांट टू गो टू द अपील कि नहीं मिस्टर ए से मेरा अच्छा रिलेशन है, मुझे ए से ही मैटर को हैंडल करना है, सो यू आर नॉट सपोज टू गो फॉर एन अपील इन दैट मैटर्स। जीएसटी रेड में व्हाट हैपेंस कि आपका सर्च एंड सीजर हुआ, रिटेंशन बुक्स ले लिया, रजिस्टर ले लिया, डॉक्यूमेंट्स ले लिया, INS 1 इज अ फॉर्म, जब कोई भी डिपार्टमेंट सर्च पे आता है तो दे प्रोवाइड यू INS 01। जैसे ही वो होता है उसके लिए आप सीजर हो गया, आप बोले सर ये एक ऑर्डर है, इसने बोला ये बुक्स, मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट सब सीज कर लिया है, मुझे इसके अगेंस्ट में अपील में जाना है। सो यू कैन नॉट गो टू अपील इन दैट फोरम एज वेल। कोई प्रोसिक्यूशन हुआ अंडर दिस एक्ट, आप उसमें नहीं जा सकते, वो आप CPC एंड ये सब में जाते हैं। सेक्शन 80 एक ऐसा सेक्शन है GST में जहाँ पे बोला जाता है कि अगर आपको 24 मंथ्स का, सपोज आप अग्री करके कि मुझे ये अमाउंट पेमेंट करना है, सपोज 24 लाख, टैक्स इंटरेस्ट एंड पेनल्टी, सो कमिश्नर हैज अ पावर कि वो आपको 24 मंथ्स के लिए आपका ये वो जिसको हम लोग EMI बोलते हैं नॉर्मल टर्म में, लेमैन्स लैंग्वेज में, बट वो लोग आपको इंस्टॉलमेंट देते हैं कि 24 लाख पेमेंट करना है, 24 मंथ्स का मैक्सिमम टाइम देते हैं, आप पेमेंट करिए। एक सपोज आपने अगस्त में पेमेंट किया, सितंबर में किया, अक्टूबर में नहीं किया, तो आपको नवंबर में फुल अमाउंट पेमेंट करना पड़ेगा जो बैलेंस बचा रहता है। अगर वैसा कोई ऑर्डर आया हुआ है सेक्शन 80 के कि सर 24 मंथ्स का ऑर्डर आया हुआ और आपको अपील में जाना है कि नहीं मुझे और मंथ्स चाहिए, मुझे 48 मंथ्स चाहिए एंड ऑल, सो यू कैन नॉट गो टू अपील। सो दे आर 4 exceptions फॉर विच अपील कैन नॉट बी फाइल्ड। ट्रांसफर ऑफ प्रोसीडिंग्स फ्रॉम वन ऑफिसर टू अनदर, ऑर्डर पर्टेनिंग टू सीजर, कोई भी प्रोसिक्यूशन होता है CPC ये सब में, उसके अगेंस्ट में आप अपील नहीं जा सकते GST अपील में। कोई भी पेमेंट ऑफ टैक्स एंड इंस्टॉलमेंट होता है सेक्शन 80 में, आप उसमें अपील में नहीं जा सकते। ओके, so this is what my first area was it. Okay, now most important thing, this is one of the most serious questions right now trending everywhere among the GST people, CA fraternity, all the fraternities on GST कि सर क्लाइंट आया मेरे पास, ऑर्डर आया, क्लाइंट मेरे पास आया 5-6 महीना बाद ऑर्डर लेकर, अब मेरे पास अपील बोलता है फाइल कर दो, तो सर अपील फाइल करे कि नहीं करे? द बिगेस्ट बिग टाइम क्वेश्चन, बिकॉज 3 मंथ्स अपीलेट अथॉरिटी का पावर होता है, 3 मंथ्स के अंदर में आपको अपील फाइल करना होता है। 1 मंथ ही मे कंडोन, अगर जैसे ही मैंने बोला वर्ड ही मे कंडोन, इसका मतलब ये हो गया कि वो चाहे तो आपका सफिशिएंट कॉज है तो वो कंडोन कर सकता है, बट अगर वो 2-3 महीना हो गया तो वो क्या कंडोन कर सकता है? नाउ दिस इज अनदर लेवल ऑफ लिटिगेशन कमिंग टू द प्ले। सो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे ही आपको ऑर्डर आया, राइट, 3 मंथ्स के अंदर आपको अपील फाइल करना है। आप ये मत देखो कि आपको 4 मंथ्स का टाइम दिया जा रहा है, 1 मंथ तो एक हाथ में है। ट्राई टू फाइल विद इन 3 मंथ्स। इफ द क्लाइंट हैज कम लेट और मे बी एनीथिंग, you have received the order after 3.5 months from a client and coming, so आपके पास 1 मंथ के अंदर में टाइम पीरियड होता है। ओके, सो लॉट ऑफ मैटर हैज कम कि जहाँ पे मेरिट से केस में, बट जस्ट बिकॉज अपील फाइलिंग हैज डन आफ्टर 4 मंथ्स, so people are going, the appeal is being rejected, so people are going to high court for condone of delay. Okay, now let me give you एक मैटर जहाँ पे SK चक्रवर्ती का बहुत कैलकुलेटर मैटर इज देयर, राइट, वेयर इट हैज बीन सेड कि अगर मेरा सफिशिएंट अप्रोप्रिएट रीजंस है तो मुझे मिलना चाहिए, बेनिफिट मिलना चाहिए कंडोनेशन का बियॉन्ड 4 मंथ्स, एंड दैट मैटर इज लाइंग विद द सुप्रीम कोर्ट। एज ऑन डेट द मैटर हैज नॉट कम इनटू द प्ले, बट देयर इज अदर मैटर वेयर श्री एंटरप्राइज स्टेट टैक्स ऑफिसर, जहाँ पे कैलकाटा हाई कोर्ट का ओरिजिनल ऑर्डर इन ओरिजिनल जो आया था GST अथॉरिटी से, वो 23 अप्रैल, अपील वॉज फाइल्ड ऑन 16 दिसंबर। सो 23 अप्रैल के बाद क्या हुआ, मई, जून, जुलाई, अगस्त was 4 months, but filed in 16th December 2019, Calcutta High Court बोला रिमांड बैक किया, बोला अपील अलाउड है, आप एक बार मैटर क्लियर करो। राइट, नाउ दे आर डिफरेंट थिंग्स कि सर हम लोग डेट ऑफ ऑर्डर को क्या पकड़ें, व्हाट शुड बी द डेट ऑफ ऑर्डर, कि ये होना चाहिए मेरा डेट ऑफ ऑर्डर, ये होना चाहिए डेट ऑफ ऑर्डर, क्या होना चाहिए? बिकॉज 169 says different modes of communication of order. Suppose you can get a courier,
ऑर्डर डेट है सपोज आपका 4 अगस्त, आपको कोरियर मिल रहा है 7 अगस्त को। सो ऑर्डर डेट उसमें क्या होना चाहिए? रजिस्टर्ड पोस्ट हो गया, ईमेल एड्रेस हो गया, कॉमन पोर्टल हो गया। सो द बेसिक, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपकी जो ऑर्डर डेट में DRC07 का जो डेट रहता है, दैट इज नोन एज अ date of order. But if you have received through a courier, if the uploaded, see 90% of times it is being uploaded on the common portal. What is the date of order in the uploaded portal is always the same date because वो generate ही नहीं करता है। बट अगर आपको मिलता है कोई कोरियर के थ्रू पे, तो आपका डेट ऑफ रिसीविंग विल बी द डेट ऑफ ऑर्डर। एक बहुत अच्छा मैटर था बागेल ट्रेडिंग कंपनी का, जहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट में बोला गया कि अपलोडिंग ऑन पोर्टल इज नॉट कम्युनिकेशन। नाउ थोड़ा सा आपको मेरे एक एरिया पे समझना पड़ेगा कि सर कम्युनिकेशन एंड सर्विस ऑफ नोटिस क्या है। सो द इलाहाबाद हाई कोर्ट मेड अ डिस्टिंक्शन कि सर देयर इज डिफरेंस बिटवीन सर्विस ऑफ नोटिस एंड कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर, सर्विस ऑफ ऑर्डर और कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर। सर्विस का मतलब ये हुआ कि आपको इस मेथोडोलॉजी ऑफ सर्विस कर सकते हैं, कोरियर के थ्रू, ईमेल आईडी के थ्रू, कॉमन पोर्टल के थ्रू, रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू। एंड कम्युनिकेशन का मतलब ये हो गया कि आपको वो कम्युनिकेट करना है। सो वंस यू कम्युनिकेट, आपको पता है कि मैंने ये चीज़ बता दिया है। अगर कोई पोर्टल में डाल देता है, डज नॉट टेंट अमाउंट टू बिलीव दैट आपका ये मैटर वो सामने वाला को मिला है, राइट? हाउ मेनी ऑफ अस रेगुलरली चेक द GST पोर्टल ऑफ अ क्लाइंट, हाउ मेनी ऑफ क्लाइंट्स रेगुलर चेक्स सर्विसेज में जाके, एडिशनल नोटिस में जाके एंड ऑल। So there is a difference of opinion in service and communication, but that has not been given power to the appellate authority. So they have the power only to condone up to 1 month, beyond 3 months. So क्या होता है when, now I'm telling you the basic, the small intricacies of appeal. So suppose the order is passed by additional commissioner and joint commissioner. People make a appeal presentation कि सर मुझे अपील फाइल करना है, ऑर्डर पास हुआ असिस्टेंट जॉइंट का, और वो लिखते हैं टू द डेप्यूटी कमिश्नर अपील्स। सो आप एक चीज सोचो, अगर कोई एडिशनल या जॉइंट कमिश्नर पास किया है कोई ऑर्डर, राइट? सो यू हैव टू गो टू द हायर फोरम, एंड हायर फोरम इज कमिश्नर अपील्स। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑर्डर किससे पास हुआ है और आपको अपील कहाँ फाइल करना है। अगर कोई डेप्यूटी एंड असिस्टेंट कमिश्नर या सुपरिटेंडेंट पास किया है, तो आपको जॉइंट कमिश्नर अपील्स में फाइल करना है। So while making an appeal, you have to be very mindful. First, go through the DRC07, the final order कि किसने पास किया और किस फोरम में हमें जाना है, to the commissioner appeals करके या to the joint commission appeals. Okay. It is stated that appellate authority को बोला गया है कि जब आपका अपील फाइल हो जाता है, so we have to dispose of within 1 year from the date which is it is filed. But practically, it's not possible. It's a provision they have made, but appellate authority is not very much inclined towards it because of the pressure of lot of things. Now now हम लोग एक टास्क करेंगे, and I want every one of you to take a part in this. So I'll ask you questions about pre-deposit for filing of appeal. Lot of people come कि sir we have a matter of 1 CR, we don't have 10 lakh rupees of pre-deposit, तो ऐसा करते हैं अपील फाइल कर देते हैं, जब आएगा तो वी विल फाइल द प्री डिपॉजिट अमाउंट, या फिर देखा जाएगा अपील का हियरिंग के बाद। तो ऐसा नहीं हो सकता। प्री डिपॉजिट 10% of tax and dispute is a mandatory payment for filing of appeal. So जब भी मैं बोलता हूँ 10% of disputed amount, so disputed amount और admitted amount क्या होता है? Let me give you an example. Suppose आपका tax is 1 CR, 70 lakh is your admitted amount. 70 lakh you say sir this is my fault, मैंने 70 लैक्स का ये मैटर है, ये लाइबल है, मैं पेमेंट करूंगा। 30 लैक्स का आई एम श्योर कि ये मैटर लिटिगेटेड है और मैं इसको फेवरेबल ला सकता हूँ। सो आई विल लव टू गो एंड अपील, गो टू अपील फोरम। नाउ टेल मी व्हाट शुड बी योर प्री डिपॉजिट अमाउंट। द आई वुड नाउ सी द चैट बॉक्स and I would request each and every one of you to tell me what should be the pre-deposit amount. 3 lakhs, 3 lakhs. Okay. So, okay, 73 lakhs, Brajesh Kumar ji. Okay. Any more answers? Okay, fine. So, I think Brajesh sir has given right answer. So, मैं जैसे ही आपको ये बोलता हूँ, ये कैलकुलेशन समझिए मेरे साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत लोग गलती कर देते हैं इसमें। आपको बोला प्री डिपॉजिट अमाउंट, ठीक है? आप अपील में जाते हैं,
आप एडमिट कर लिए 70 लाख तो पेमेंट करना है. 3 lakh is your pre-deposit amount. So 73 lakh is your pre-deposit amount for going to the forum. आप जैसे ही 73 लाख पेमेंट करते हैं फोरम में आप जाके उसको प्री डिपॉजिट कर सकते हैं. सो इसलिए इसमें बोला जाता है कि वट एवर योर 10%, इफ यू जस्ट रीड माई पीपीटी, 10% रिमेनिंग डिस्प्यूटेड टैक्स अमाउंट इज रिक्वायर्ड. सो आपको वो प्री डिपॉजिट करना पड़ता है. एम आई क्लियर ऑन दिस? सो दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट. आपको कैलकुलेशन, चलिए एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं. सपोज 50 lakhs is your matter. Sorry, 50 lakh is your matter. ठीक है, 50 लाख को आपको लगता है कि आपको लिटिगेटेड है, आपके फेवर में आ सकता है. व्हाट शुड बी योर प्री डिपॉजिट अमाउंट प्लीज? 50 lakh is your disputed tax amount. You want to go to the appeal forum. 10% is the pre deposit. What should be the? Yes, 5 lakh. Absolutely right. So it's 5 lakh. Yes. So you have 5 lakh rupees as a pre deposit amount and you have to go to the forum. Okay. Penalty order पे मैं नहीं जा रहा हूँ अभी because not been notified. Yes. Okay. So what happens? Stay on recovery proceedings. That is very important thing. क्या होता है, आपका DRC 07 एक ऑर्डर आ गया, आप सोचे अभी अपील करेंगे नहीं, रहने देते हैं, रहता है लेट इट बी 6 महीना 7 महीना. सो आपका सेक्शन 79 को इन्वोक किया जा सकता है, जहाँ पे ये बोला जा सकता है कि सर, एज यू हैव नॉट फाइल्ड द अपील, we are recovering the amount as mentioned in the DRC 07 under sections invoking section 79 and will recover the amount. To put a stay on the recovery proceedings, you need to make a pre-deposit and go for the appeal. So GST mein what is the one of the biggest challenge people are facing? After 4 months of your final order, lot of states like I was handling multiple cases in Tirupati, Andhra Pradesh and South, and within 6 months, people, the department takes a recovery letter to the bank. This is the letter from the recover GST department to the bank that this is the order being pending. We need the amount for blockage of amount of suppose 60 lakh or 50 lakh, whatever the notice it is. So it's very important कि जैसे ही आपके पास order है, you should go for the appeal, making a pre-deposit, or else recovery proceedings under section 79 can be initiated. Okay, so this is a flowchart which I has made कि आपके पास क्या क्या फोरम होता है. जैसे एडजुडिकेशन ऑर्डर आया, अपीलेट अथॉरिटी के पास जाते हैं, उसकी तरफ से अगर नेगेटिव ऑर्डर आया, यू गो टू ट्राइब्यूनल, ट्राइब्यूनल से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट. दिस इज अ फ्लो. ओके, नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू. ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव होता है, वी आर ऑल ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव डिपार्टमेंट. ठीक है, अगर हमारे ऊपर नोटिस नहीं आया तो हम लोग क्या होते हैं, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव होते हैं डिपार्टमेंट के क्लाइंट के लिए. So how many people of like how many you are sending articles to for representation of a matter? कि चलो यार मेरे ऑफिसर, मेरे क्लाइंट का मैटर है, छोटा सा मैटर है 2-4 लाख रुपए का, मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने आर्टिकल को भेज देता हूँ या मेरे कोई भी पेड स्टाफ को भेज देता हूँ. सो सर आई वुड लव टू हियर यू ऑल इन दिस चैट. कितनों ने भेजा है अपने आर्टिकल को या अपने पेड स्टाफ को ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव मैटर के लिए, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव फॉर जीएसटी मैटर? सर सिंस ऑलरेडी आपका प्रेजेंटेशन का ये स्लाइड अपीयर कर रहा है, आई डोंट थिंक कोई लिखेगा कि भेजा है. ओके ओके, आई थिंक वो नहीं आ पाएगा ना, चैट बॉक्स में मिल सकते हैं. डिफिकल्ट, नॉट अलाउड. ओके, हाँ. सो ठीक है, आई टेक इट फॉरवर्ड. सो मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मेरे साथ ये मैटर हुआ था. क्या हुआ, मैंने एक आर्टिकल को भेजा कि आप जाओ ऐसा ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, क्लाइंट ने उसके नाम पे पावर ऑफ अटॉर्नी दे दिया, एंड ही वेंट टू दैट मैटर. ही वेंट टू दैट मैटर एंड ऑफिसर उसको बोला है कि आपके पास क्या है, तो बोला सर ये रिप्रेजेंटेटिव है, क्लाइंट ने साइन किया है. बोला सॉरी यू आर नॉट सपोज टू अटेंड द हियरिंग. बोला सर भाई, बोला सेक्शन 116 पढ़ लो. तो पर्सन कॉल मी, सर ऐसा ऐसा बात. मैंने बोला ठीक है, आज मैं देखता हूँ. While I was reading that definition, I decoded in this chart
एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू टेक इनटू कंसिडरेशन कि यहाँ पे क्या है, कौन रिप्रेजेंट कर सकता है मैटर, हिज रिलेटिव और रेगुलर एम्प्लॉय। तो मेरा आर्टिकल उसका रिलेटिव भी नहीं है, उसका एम्प्लॉय भी नहीं है, पहला पॉइंट आउट। वो एक एडवोकेट भी नहीं है, दूसरा पॉइंट आउट। ना वो सीए है, सीएस है, सीएमए, होल्डिंग सीओपी, आउट। रिटायर्ड ऑफिसर, कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट, इसमें वो आता तो मेरे पास आर्टिकलशिप वो नहीं कर रहा होता, तो ये भी आपका परव्यू के बाहर हो गया। Now, last point. Any person authorized to act as a GST practitioner. GSTP is a license which the department has issued कि अगर आपको GST पे प्रैक्टिस करना है तो आपको GST practitioner का लाइसेंस होना चाहिए, सो ही आप उसको GST पे यूज कर सकते हैं। जस्ट बिकॉज हम लोग जनरल केसेस में भेज देते हैं आर्टिकल को या पेड ऑफ स्टाफ को, बट दिस सेक्शन इफ रेड सीरियसली, सो आप सीए हो, सीएस हो, सीएमए हो, सीओपी होल्ड कर रहे हो तो आप ही जा सकते हैं। I think this will be any time in future will be amended by some people out there in the parliament. But as on date, it's very important to understand कि अगर वो चाहे तो आपका hearing को मना कर सकता है if you're sending an article or a paid up staff on this. Though this is a practice going on since decades now, but if you see section 116, it's very important to make you understand this. Okay, so these are the basically chapter and some rules of the section of the appeal, जो मैं just डाला हूँ brief to you. Okay, now these are the forms जहाँ पे I just tell you कि like APL 01 is appeal to appellate authority. APL 2 में आपका acknowledgement आता है। acknowledgement का ये मतलब ये नहीं होता कि आपका appeal drop हो गया। Once you receive APL 02 ऐसा मत सोचे कि आपका matter close हो गया और nothing can be happen. It's just an acknowledgement कि आपका appeal has been successfully filed. Okay. APL 4 is the most important thing. This is known as the order copy. जैसे आपका adjudication case में क्या होता है, DRC 07 is the order copy of adjudication stage. APL 04 is that copy जहाँ पे आपका मैटर होता है कि अपील मैटर आपका ड्रॉप हुआ या कम हुआ या ज़्यादा हुआ, वट एवर इट इज बी द केस, वो APL 04 में होता है। देन ओनली द अपीलेट ट्राइब्यूनल एंड ऑल दोस थिंग्स कम्स इनटू द प्ले। ओके, नाउ व्हाट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। सो आपको अपील में अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ओनली 3 एडजमेंट्स आर अलाउड। सपोज एक हियरिंग आया, आप गए नहीं, सेकंड आया नहीं गए, थर्ड आया नहीं गए, फोर्थ पे दे हैव द पावर टू डू एन एक्स पार्टी ऑर्डर, जहाँ पे आप गए नहीं और आपको वो ऑर्डर पास किया। सो ओनली 3 एडजमेंट्स आर अलाउड इन अपील मैटर्स। ओके, सपोज आपने कोई ग्राउंड ऑफ अपील बनाया, राइट, और आप जब फाइल किए अपील का आप भूल गए, और जब आप प्रेजेंट हुए आफ्टर 7-8 महीने बाद जब हियरिंग आया, सो यू कैन प्रेजेंट एडिशनल ग्राउंड्स to that, subject to the appellate authority may or may not accept that. But generally, as per my notional, I have handled more than 300 cases of appeal, so वहाँ पे वो लोग हैंडल कर लेते हैं इस चीज़ को, एडिशनल को। ओके, नाउ आई हैव फ्यू इम्पोर्टेंट थिंग्स, प्रैक्टिकल थिंग्स, ये मेरे प्रैक्टिकल एक्सपोजर से निकला हुआ चीज़ है, मेरे खुद के एक्सपीरियंस का चीज़ है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। कि आप जब अपील में हियरिंग के लिए जाते हो, सो आई हैव सीन पीपल, आप इतना बड़ा बड़ा बुक्स बना के लेकर जाते हो, राइट, आप किसी को ऐसा बुक्स बना के देते हो तो वो समझ में नहीं आता है कि उसको कहाँ से पढ़े, क्या है नहीं है। सो ऑलवेज प्रिपेयर अ जिस्ट ऑफ सबमिशन। सपोज वट एवर सबमिशन यू आर मेकिंग, सपोज आपका 3B2B का डिफरेंस था, आपने सर्कुलर 180 27 दिसंबर 2022 का जो रेफरेंस था, जहाँ पे 5 लाख से ज़्यादा डिफरेंस होने से सीए कैन सर्टिफाई, तो वो सर्टिफिकेशन का एक जज बना लिया कि यस सर वी हैव मेड अ सीए सर्टिफिकेशन एज पर 183 सर्कुलर or something like that. So gist of submission should be in 2 pages, which should be handed to you and handed to the person. He said, this is the gist of the submission we are presenting. Because in appeal matters, you get less time as compared to the adjudicating authority matters. So your gist actually says the weightage of the matter, and it brings a good impression on you as a consultant. Okay, a lot of people I have seen making appeals and this does not know what the business of the SSC is all about. सो पीपल ने, मैंने ऐसा भी देखा है मैटर्स में, ऑफिसर्स, आई डू ऑफिसर्स ट्रेनिंग ऑल्सो। सो ऑफिसर्स कि रोहित जी मुझे मेरे पास मैटर आता है अपील का, उसमें लिखता है इट्स अ ट्रेडिंग बिजनेस हु इज डूइंग ट्रेडिंग ऑफ स्क्रैप मटेरियल्स और समथिंग। जब मैं पूछता हूँ ओनर से, बात हुआ, तो ओनर का बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सम आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट, बट वहाँ पे ट्रेडिंग लिखा हुआ रहता है। सो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड दैट बिफोर डीप डाइविंग इनटू द केस यू शुड अंडरस्टैंड द बिजनेस ऑफ द एसएससी, कि वो क्या चीज़ का बिजनेस है, वो ट्रेडिंग कंसर्न है, सर्विस इंडस्ट्री है, वो सर्विस है तो किस चीज़ का सर्विस इंडस्ट्री है, राइट, दैट इज इम्पॉर्टेंट। ओके, फैक्ट्स ऑफ द केस,
को एक्सप्लेन करिए बहुत ब्रीफली, which is very important. कि lot of times we write 2-3 lines only कि this is the SSC, he has taken registration number blah blah blah, इसका operations कैलकाटा में है, यहाँ पे है, and then we directly he has received a notice SMT 10 but it was not duly replied and here is a final order. This should not be the facts of the case. आपका the facts of the case should be एकदम summary and should be very brief and on point. जैसे मैं आपको स्टार्टिंग से बताया कि तो बस फैक्ट्स में लिखा, पहले एसएससी के बारे में लिखा, उसके बाद आपने डाला कि जो भी मैं बोल रहा हूँ वो सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी तीनों लॉ के हिसाब से है। सेकंड रहा आपका पैराग्राफ जहाँ आपने उसके बिजनेस को डिस्क्राइब किया कि व्हाट बिजनेस दे आर डूइंग। फोर्थ में आप ये भी डाल सकते हैं कि उसने कितना, मतलब कैसा टर्नओवर रहा उसका, वो कितना टैक्सेस पेमेंट कर रहा है, जस्ट टू पुट अ गुड इंप्रेशन दैट ही इज अ गुड पेयर ऑफ अ टैक्स। यू कैन टेक अ रेलेवेंस ऑफ इनकम टैक्स और एनीथिंग लाइक दैट वे। फोर्थ, नाउ यू स्टार्ट, सपोज SMT 10 आया तो अपने SMT 10 के बारे में लिखा कि सर ये डिस्क्रिपेंसी था, रिप्लाई हमने ये किया, आपका फिर प्री शो कॉज नोटिस में ये ड्रॉप हो गया, 10 लाख था 4 लाख ड्रॉप हो गया प्री कॉज शो नोटिस में, फिर 2 लाख रुपए ड्रॉप हुआ शो कॉज नोटिस में, फिर फाइनल ऑर्डर 1 लाख का आया, अब हम लोग इसके लिए भी अपील में आ रहे हैं। सो योर सिनर्जी शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ यू आर प्रेजेंटिंग द केस, सो दैट व्हेनेवर सम पर्सन रीड ना, सो इट शुड बी लाइक कि हाँ मुझे पूरा एक होलिस्टिक व्यू मिल रहा है कि ये कैसा है। ओके, if you are submitting any case law, people try to refer the case law of anything. So if you are submitting any case law, you should write the extract of the case law. That is also important part in this thing. Okay, so now I'm telling you, suppose your April 04 order has been passed. देखिए आपका अपील ऑर्डर पास हो गया है और नेगेटिव है, आपने नेगेटिव ऑर्डर पास हुआ, वो मॉडिफाई हो सकता है क्या? यस हो सकता है, तभी हो सकता है जब वो अपेरेंट ऑन फेस ऑफ रिकॉर्ड से आए। लाइक कोई क्लरिकल मिस्टेक हो गया, कोई फिगर 1 लाख डालना था उसने जल्दी से 1 CR डाल दिया, सो अगर इस तरह का मैटर है तो वो मॉडिफाई हो सकता है। ओके, इन अपीलेट मैटर कैन नॉट बी रिमांडेड बैक एट अपीलेट अथॉरिटी, आपका मैटर रिमांड बैक नहीं कर सकता टुवर्ड्स द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो सर्विस टैक्स के टाइम पे था। सो एनीथिंग कमिंग टू अपीलेट अथॉरिटी वो उसका जुरिस्डिक्शन बन जाता है, उसी एरिया में वो देखता है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, सपोज आपका शो कॉज नोटिस आया 10 लाख रुपए का, आपका मैटर गया अपील में, ऐसा नहीं हुआ अपील में 10 लाख जाने की जगह पे वो बोला कि नहीं अच्छा 3B1 का भी डिफरेंस है, तुम्हारा RCM का भी डिफरेंस, ये प्रॉब्लम है उसका प्रॉब्लम है, वो करके 1 करोड़ रुपए का नोटिस बनाते हैं। नो, अपीलेट अथॉरिटी इज रिस्ट्रिक्टेड टुवर्ड्स द शो कॉज नोटिस एंड द DRC 07 फाइनल ऑर्डर, ही कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट कि आपका जो भी अपील मैटर होगा वो आपका उतना ही रेस्ट्रिक्टेड रहेगा, नया एडिशनल पॉइंट्स वो अपीलेट अथॉरिटी नहीं निकालता है इस चीज में। ओके, नाउ व्हाट आई वाज टेलिंग अबाउट द फैक्ट्स के बारे में, जितना भी इसेंशियल फैक्ट्स है वो आपका होना चाहिए, क्रोनोलॉजिकली मेंशन होना चाहिए। क्रोनोलॉजी का मतलब ये हो गया कि आप पहले शो कॉज नोटिस के बारे में लिख दो थर्ड पॉइंट में, उसके बाद ऑर्डर के बारे में लिखा, उसके बाद SMT 10 के बारे में लिखा, उसके बाद SMT 11 के बारे में। नहीं, दिस शुड नॉट बी द केस। Your notice facts of the case should be chronologically ordered. Make at least 12, 10, 15 points जहाँ पे आपका पूरा chronology follow होना चाहिए। बिजनेस कैसे ऑपरेट होता है उसके बारे में लिखिए। We don't need to be become like very good in English. Lot of people have that problem कि सर मेरा ड्राफ्टिंग स्किल्स उतना अच्छा नहीं है, I cannot talk like Shashi Tharoor or something like that, right? So आपको उतना ज़्यादा फोकस नहीं करना, इट शुड बी सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल, दैट्स इट। एंड आप कुछ भी लिखो ना फैक्ट्स ऑफ द केस में, योर मेंशनिंग शुड बी लाइक, सपोज आपने मेंशन किया कि सर वी हैव रिसीव्ड अ प्री शो कॉज नोटिस, सो यू शुड मेंशन द डेट नंबर ऑफ द प्री शो कॉज नोटिस, द रेफरेंस नंबर, द डेट ऑफ द नोटिस, वी हैव मेड रिप्लाई विद इन द टाइमलाइन विद इन 15 days और समथिंग लाइक दैट। सो ये सब थोड़ा सा ब्रीफली मेंशन होना चाहिए। आपका कोई भी फैक्ट्स होगा वो सपोर्टिंग एविडेंस हो पाए, तो यू शुड, जैसे मान लो आपने मेंशन किया वी हैव टेकन अ रजिस्ट्रेशन सिंस इंसेप्शन ऑफ GST, सो वहाँ पे ब्रैकेट में नीचे आप डाल सकते हो GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इनक्लोज्ड, राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। डिटेल्स ऑफ रिप्लाई, पर्सनल हियरिंग अटेंड किया उसको मेंशन करना, कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंस हुआ पर्सनल हियरिंग के ड्यूरिंग तो वो आप मेंशन करो अपने फैक्ट्स ऑफ द केस में जो अपील का बना रहे हो। ओके, दिस इज द वैलिडिटी ऑफ द ऑर्डर। आपके पास जब भी ऑर्डर आता है, सर्कुलर 3105/2018 9/2/2018 में आया था, वहाँ पे बोला गया था कि कोई भी ऑर्डर पास होता है उसका एक मॉनेटरी लिमिट्स होता है। मॉनेटरी लिमिट्स क्या हुआ, सुपरिटेंडेंट 10 लाख रुपए तक का GST का मैटर पास कर सकता है, 20 लाख IGST, असिस्टेंट कमिश्नर डिप्यूटी कमिश्नर 10 लाख से 1 करोड़ तक कर सकता है,
एडिशनल कमीशन जॉइंट कमीशन अबव 1 CR कर सकता है। कोई ऑर्डर आया, सुपरिटेंडेंट का ऑर्डर है, आपने देखा वो मैटर है 2 CR का, सो उसके हाथ में वो पावर ही नहीं है, सो वो कैसे पास कर रहा है, राइट? सो यू कैन चैलेंज दैट ऑल्सो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि किसके हाथ में कितना पावर है नोटिस पास करने का। 10 लाख सुपरिटेंडेंट, अप टू 1 करोड़ असिस्टेंट एंड डेप्यूटी, additional commission, joint commission above 1 crore. So it's very important to understand this. Okay. Now there are few things, important things जो मैं बताता हूँ कि आपको मैंने बताया कि beyond the show cause notice जा नहीं सकता. Okay. Now there is a time limit of issuance of notice section 73 and 74. I'll share that slide with you as well. जहाँ पे मेंशन किया हुआ है 73 का नोटिस, सपोज कोई पर्टिकुलर टाइम लिमिट तक है, उसके बाद अगर वो आता है, सो यू कैन चैलेंज दैट कि विदाउट this notice has come after the date of due date of the time limit, and hence the matter should be dropped or in bunked order, something like that sort of. Okay. Okay, now let me tell you one very important thing. There are two sections of GST जिसमें आपको नोटिस या ऑर्डर आता है, सेक्शन 73 एंड सेक्शन 74। सेक्शन 73 ये बोलता है कि आपने कोई फुल स्टेटमेंट नहीं है, सेपरेशन ऑफ फैक्ट्स नहीं है, फ्रॉड नहीं है, आपको 73 में आता है। 74 में ये बोलता है कि आपने बिल्कुल मिसस्टेटमेंट, सेपरेशन ऑफ फैक्ट्स, मैलाफाइड इंटेंट, सेक्शन 74। आप 74 में ज़्यादा पेनल्टी होता है, 73 में कम पेनल्टी होता है। नाउ द अपीलेट अथॉरिटी में अगर आपके पास कोई नोटिस या ऑर्डर आया हुआ है और अपील अथॉरिटी में जा रहे हो जो 74 में आया है, सो यू कैन यूज सेक्शन 75 सबसेक्शन 2 ऑफ द एक्ट एंड रिक्वेस्ट द अपीलेट अथॉरिटी to revise the notice or order from 74 to 73. Now आप बोल रहे हो सर ये तो ठीक है बट क्या ही फायदा, राइट? नाउ आई एम टेलिंग यू वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एक जीएसटी में एमनेस्टी स्कीम आया सेक्शन 128A, जहाँ पे बोला गया कि सर अगर आप 31 मार्च तक टैक्स का पेमेंट कर देते हो, ठीक है, 17, 18, 18, 19, 19, 20 का, तो आपको इंटरेस्ट एंड पेनल्टी का 100% वेवर मिल जाएगा। मेरे क्लाइंट के पास एक ऑर्डर आया हुआ था, जो ऑर्डर का अमाउंट था अराउंड 1.23 CR, टैक्स, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी, जिसपे इंटरेस्ट भी था अराउंड 1.2 का, पेनल्टी भी था अराउंड इसी टाइप का, समथिंग अराउंड 10 74 to 25% का पेनल्टी था। सो टोटल मैटर वाज कमिंग अप टू सपोज 4.74 CR, ठीक है। मैंने क्या किया, जब मैंने अपील फाइल किया, मैंने सबसे पहले चीज़ को चैलेंज किया कि ये मैटर जो है ये 74 में नहीं 73 में होना चाहिए था। Using 75 to appellate authority can revise the matter from 74 to 73. Yeah. The other case, कोई भी appellate authority 73 का मैटर को 74 में नहीं कर सकता, बट 74 का मैटर को 73 में लेकर आ सकता है। मैंने उसको बोला, appellate authority बोला यस सर वी अग्री विद इट दैट देयर इज नो विलफुल मिसस्टेटमेंट, सेपरेशन ऑफ फैक्ट्स, फ्रॉड नहीं किया है, हम लोग उसको 73 में करेंगे। 73 में उन्होंने ऑर्डर को रेडी किया। जैसे उन्होंने रेडी किया, अगर वो 70 सेक्शन 128 ये बोला था जो भी ऑर्डर 73 सेक्शन में आया है उसी का आपको बेनिफिट मिलेगा, 74 वालों को बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो मैटर मुझे 5 करोड़ पेमेंट करना था इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 74 के नोटिस में, वहाँ पर मैंने 1.5 CR पेमेंट किया और मुझे सेक्शन 75(2) को यूज करके 74 से 73 में लेकर आया, एंड वहाँ पे मुझे इंटरेस्ट एंड पेनल्टी का पूरा वेवर मिल गया। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस डायनामिक्स कि अगर आपके पास 74 में कोई ऑर्डर आया है तो आपको 73 में पुश करने के लिए एक आपके पास स्ट्रॉन्ग ग्राउंड होना चाहिए, एंड इट्स डिपार्टमेंट इज लायबल टू प्रूव कि आपका ये फ्रॉड मैटर है, राइट? आपको प्रूफ नहीं करना है, आपको मुझे बताना है कि सर मैंने ऐसा ऐसा किया है, मेरा फ्रॉड इंटेंट नहीं है, एंड डिपार्टमेंट को 74 से 73 में लाना है। सो एनी ऑर्डर विच यू आर रिसीविंग इन 74 यू शुड चैलेंज दैट अंडर कि आपको 74 से 73 में करना है। सो दिस इज द टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ शो कॉज नोटिस एंड ऑर्डर। जैसे आप देख सकते हैं 17-18 का ऑर्डर 31 दिसंबर 23 था, 5 फरवरी 25 ये खत्म हो चुका है। 18-19 का आपका 73 में 30 अप्रैल था, 31 दिसंबर हो चुका है। तो आप ये भी अगर 74 से चेंज किए 73 में तो आपको इसका भी बहुत सारा बेनिफिट मिलता है। तो 19-20 का अभी आप देखिए अप्रैल का खत्म हो गया, ठीक है। इस तरह से आपको ये चीज़ क्लैरिटी मिलता है। ओके, नाउ फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हाट वी डू ना, वी हैव अ हैबिट ऑफ कोटिंग केस लॉस। हम लोग के दिमाग में एक इंप्रेशन है जितना केस लॉ डाला उतना ज़्यादा वेटेज बढ़ गया रिप्लाई का।
बट आई टेल यू दैट एक्चुअली नॉट ट्रू। अगर मान लो आपने कोई केस लॉ डाला, राइट, सपोज भारतीय एयरटेल का डाला 3B 2B के लिए कि GSTR 2As और ऑटो फैसिलिटेशन समथिंग स्टेटमेंट ये वो, आप उसको केस लॉ डाल दिए, केस लॉ डालने के बाद आप उसको छोड़ दिए। मैं बोलता ऐसा मत करिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वेन एवर यू आर कोटिंग अ केस लॉ, सपोज आपने केस लॉ एक पेज में पूरा कोट कर दिया, नाउ यू शुड रिलेट दैट केस लॉ टू योर मैटर, कि सर ये केस लॉ जो है ना मेरे मैटर से कैसा इंटर रिलेटेड है। एक पैराग्राफ होना चाहिए आपका जहाँ पे आप वो रिलेशन बताओ कि सर our matter is in respect of Airtel only, where we have taken 3B में credit, but 2A is auto facilitation center that was not active on 9th October 2019. Hence, Lex cause impossibilia, right? That is impossible for anything to make it a version. So, आपको क्या होता है, कोई भी केस लॉ आप करो उससे अपना केस को रिलेट करो। जब तक आप केस लॉ कोड करते हो और अपने केस को उससे रिलेट नहीं करते हो ना, तो वो केस लॉ का वेटेज जो होता है ना, जो 100% होना चाहिए वो 20% पे ही रहता है। So that whenever anyone is passing an order against you, so he will read that paper and he will understand कि boss this is something, he knows his subject and he knows that this matter has been in favor of this by Supreme Court or by any person, और ये जो कर रहा है ये इसको रिलेट कर दिया। You're getting my point? It's very important to understand few things। मैं बताता हूँ लिटिगेशन जीतने के लिए आपको बहुत बड़ा बड़ा चीज नहीं करना होता, आपके छोटे छोटे चीजों को आपको बड़े ढंग से करना होता है। दैट इज व्हाट माय कोर competency understand me and makes me feel it's very important। and whenever you're quoting a case law, so the sequence should be that सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर ट्राइब्यूनल, फिर ऐसा होना चाहिए। बहुत लोग का होता है कि पहले ट्राइब्यूनल दे दिया, फिर हाई कोर्ट भी दे दिया, फिर नीचे में सुप्रीम कोर्ट दे दिया। नहीं, दैट इज नॉट द वे टू कोर्ट एनी केस लॉ। अगर आपका कोई केस लॉ है सुप्रीम कोर्ट का, तो वो शुड बी प्रायोरिटी, फिर हाई कोर्ट, फिर ट्राइब्यूनल्स का मैटर होना चाहिए। ओके, सो मैंने जैसे आपको बताया कि अगर आपको कोई भी चीज 16(4) का मैटर है, लेक्स नॉन कॉग्निट और पॉसिबिलिया है, पीआई, आप एक्सटर्नल एविडेंस यूज कर सकते हैं, लाइक सीए सर्टिफिकेट हो गया, चार्टर्ड इंजीनियर सर्कुलर 183 का रेफरेंस मैंने जब को बताया, जहाँ पे भी है। वाइल हैंडलिंग एनी मैटर यू शुड टेक हेल्प ऑफ काउंसिल मीटिंग्स का मिनट्स भी जो रहता है, एफएक्यूज रहता है, वो सब चीज़ का भी आप रेफरेंस ले सकते हैं। सपोज कोई चीज़ मैटर डिस्कस हुआ काउंसिल मीटिंग में और वो अभी तक इनैक्ट हुआ, जैसे मैं 16(5) का बताता हूँ। 16(5) वॉज डिस्कस इन 52nd काउंसिल मीटिंग, 53rd काउंसिल मीटिंग, बट उसके बाद वो इनैक्टमेंट में टाइम लगा। सो मेरा 16(4) के सारे मैटर में मैंने डाला वहाँ पे कि ये मीटिंग का मिनट्स है, इसमें ये डिसाइड हुआ है, इट विल कम इन टू द प्ले इन नियर फ्यूचर, हेंस प्लीज वेट फॉर द ऑर्डर टिल इट कंक्लूज टू द फाइनल कंक्लूजन। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि कोई भी मिनट्स हो, कोई भी एफएक्यूज हो, आप उसका भी रेफरेंस देकर एक बार के लिए कोई मैटर को बोल सकते हैं। इट कैन बी additional evidence for you। Okay, so I think few procedures are very important। so आपका अपील नंबर, अपील जो होगा पेज नंबर रहना चाहिए, इंडेक्सेशन बनना होना चाहिए, कवर लेटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका प्लेसमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट शुड बी कवर लेटर पहले, फिर इंडेक्स बनाइए कि क्या क्या आपने डाला है। प्री डिपॉजिट जो 10% ऑफ टैक्स एंड डिस्प्यूट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑथराइजेशन लेटर आपका रहेगा, अपील का पेपर्स एंड एनेक्स्चर्स। एक्नॉलेजमेंट आपको मिलता है ऑनलाइन APL02। आप फिजिकल जाके डिपार्टमेंट नहीं बोल सकते कि मैंने अपील फाइल किया है मुझे एक्नॉलेजमेंट दो, जो भी अपील का एक्नॉलेजमेंट आता है वो ऑनलाइन आता है। दिस इज व्हाट माय अपील इज ऑल अबाउट। नेक्स्ट वी आर कमिंग टू द प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन कि सर अपील तो चलिए मैंने बना लिया, मैंने देख लिया कि सुपरिटेंडेंट इतना का ऑर्डर पास किया है, मेरा फैक्ट्स ऑफ द केस पूरा ब्रीफली है, मेरा ग्राउंड्स ऑफ अपील मैंने बना लिया, सारा चीज़ ओके, बट सर अपील फाइल कैसे करें। तो अब मैं आपको नेक्स्ट 10 मिनट्स में, 5-7 मिनट्स में मैं आपको ये समाप्त करूंगा कि हम लोग अपील फाइल कैसे करें एंड व्हाट इज द वे फॉरवर्ड फॉर फाइलिंग एन अपील। फर्स्ट यू हैव टू लॉग इन टू द GST पोर्टल, गो टू सर्विसेज, यूजर सर्विसेज, माई एप्लीकेशन। जैसे ही आप एप्लीकेशन टाइप में जाते हो, वहाँ पे एक ड्रॉप डाउन बटन आता है जिसको बोलते हैं अपील टू अपीलेट अथॉरिटी। आप अपील कर रहे हो अपीलेट अथॉरिटी को, न्यू एप्लीकेशन टाइप करते हो, वहाँ पे एक कैटेगरी आ जाता है अंडर डिस्प्यूट कि आपका कौन सा कैटेगरी है। यहाँ पे मल्टीपल कैटेगरी होता है, 16(4) हो सकता है, मिस क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स हो सकता है, HSN कोड डिस्प्यूट हो सकता है, 3B 3A 2B, एनी डिफरेंस कैन बी देयर। वहाँ पे आपको सिलेक्शन करना पड़ता है। सपोज आपका जो मैटर है वो तीन चार डिस्क्रिपेंसीज हैं, सो वहाँ पे यू हैव टू ऐड ईच एंड एवरी मैटर। एंड सपोज कोई ऐसा मैटर है जो लिस्ट नहीं किया हुआ, बिकॉज ओनली 14 or 15 मैटर्स हैव बीन लिस्टेड आउट देयर, कोई ऐसा मैटर जो लिस्ट नहीं किया, सो यू हैव टू सेलेक्ट अदर्स एंड यू हैव टू राइट द समरी ऑफ दैट मैटर कि दिस इज द मैटर ऑफ माई केस। ओके, नाउ यू हैव टू अपलोड द एनेक्स्चर 1। GST APL 01 होता है, मैं आपको उसका फॉर्मेट भी नेक्स्ट में दूंगा
सो मेरा एक फॉर्मेट अभी स्लाइड में रहेगा, उसी फॉर्मेट में करने से क्या होता है कि आपको एक इजीली कंट्रोलेबल एक्सेस मिलता है कि कैसे होना चाहिए। तो APL01 का एक ऐसा फॉर्मेट होता है, दिस इज अ फॉर्मेट बाय द डिपार्टमेंट, बाय आई हैव अ सेपरेट फॉर्मेट फॉर दिस रेलेवेंट टू दिस ओनली, दैट इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव। जैसे ही आप उसको फाइल करने के लिए जाते हो तो 2-3 कॉलम्स आता है। एक आता है इनिशियल अमाउंट। इनिशियल अमाउंट वो हो गया जो आपके DRC-07 में है, कि ये आपका DRC का ऑर्डर दिखा रहा है। डिस्प्यूट आप बोल रहे हो कि हाँ मैं 1000 का अमाउंट है, 1000 में डिस्प्यूट करता हूँ। सो आपको एडमिट में 0 हो गया बिकॉज आपने एडमिट किया नहीं। ओके, उसके बाद आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लाना होता है। आई ऑलवेज टेल 2-3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है वाइल फाइलिंग एन अपील। DRC-07 का कॉपी फाइल करिए, समरी ऑर्डर डालिए, APL01 का कॉपी इज मैंडेटरी, एंड वाइल फाइलिंग द अपील यू शुड मेक श्योर दैट आपका जो भी प्री डिपॉजिट का चालान है DRC-03 से पेमेंट हुआ है, जैसे आपने पेमेंट किया वो चालान भी अटेस्ट रहना चाहिए। ओके, वंस द अपील इज फाइल्ड, ऐसा नहीं होता, इट्स नॉट अ व्हाट यू से रियल टाइम मैकेनिज्म कि APL01 फाइल हुआ संग संग APL02 आ गया। APL02 आने में यू कैन गेट ऑल्सो 2 months, 15 days, 3 months ऑल्सो। APL02 आने में it is done, all the appeal is filed only online, online only, there is no mechanism of offline filing of appeal even though you have received a thing। नेक्स्ट ये हो गया आपका ऑनलाइन मैकेनिज्म। नेक्स्ट वी आर कमिंग अप टू APL01 फॉर्मेट। नाउ आई एम टेलिंग यू कि आपका APL फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। जैसे मैंने बताया ना, बिफोर द सीनियर जॉइंट कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर अपील्स, सो जो भी अपील का आपको मैंने बताया फर्स्ट टाइम कि अगर सुपरिटेंडेंट से पास हुआ तो कमिश्नर अपील्स, आपको जॉइंट कमिश्नर से पास हुआ तो आपको कमिश्नर अपील में जाना है, असिस्टेंट से पास हुआ तो आपको किसमें जाना है, राइट। सो द GSTN नंबर आपका मेंशन होना चाहिए, लीगल नेम, ट्रेड नेम, एड्रेस, ऑर्डर नंबर, ऑर्डर डेट, DRC-07 का जो डेट है वो होना चाहिए, कौन से डेजिग्नेशन का ऑफिसर ने आपका ऑर्डर पास किया, ये एक वर्ड फॉर्मेट है जो आपका बना रहेगा। डेजिग्नेशन क्या है, एड्रेस क्या है, वो रहना चाहिए आपके यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट, कि कौन सा ऑर्डर है, किस दिन डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द ऑर्डर अगेंस्ट। सपोज आपका यहाँ पे, मैं आपको बोलता हूँ ऑर्डर नंबर 5 देखिए, यहाँ पे ऑर्डर डेट अगर आपका 5 अगस्त है, 5 अगस्त को पोर्टल में नहीं डाला हुआ है, कोरियर आया 5 अगस्त का डेट है, 7 अगस्त को आपको मिला है, तो आपका यहाँ पे 7 अगस्त रहना चाहिए। नहीं मतलब ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, आप खुद ऑथराइजेशन, आपका नाम होना चाहिए, आपका डेजिग्नेशन एज चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। ब्रीफ इश्यू ऑफ द केस अंडर डिस्प्यूट, क्या होता है कि आपका डिस्प्यूट बहुत बड़ा हो सकता है, राइट, बट आपको ब्रीफली उसको इशू करना होता है कि आपका ये ब्रीफ इशू है। डिस्क्रिप्शन डाल दिए, पीरियड डाल दिए, 17-18 का मैटर है, 18-19, 19-20 पीरियड ऑफ डिस्प्यूट डाल दिए। यहाँ पे आपको डालना होता है अमाउंट अंडर डिस्प्यूट, कि कितना कितना अमाउंट आपका डिस्प्यूट में डाला हुआ है, ये चला जाएगा। वेदर द अपीलेंट विशेस टू बी हर्ड इन पर्सन, यस। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स एनेक्चर बी, ग्राउंड्स ऑफ अपील एनेक्चर C पे चला जाएगा। प्रेयर तो एक हम लोग बेसिक प्रेयर डालते हैं, राइट। अमाउंट ऑफ डिमांड क्रिएटेड, सो अमाउंट ऑफ डिमांड क्रिएटेड विल बी एज पर द एडजुडिकेशन फाइनल ऑर्डर। डिमांड एडमिटेड, यहाँ पे मैंने बोला ना, जैसे जितना आपने एडमिट किया डिमांड, वो यहाँ पे आपका एडमिट अमाउंट चला आएगा, कि आपने एडमिट किया, सपोज 1 करोड़ का मैटर था, 50 लाख आपने एडमिट किया, तो 50 लाख रुपीज यहाँ पे चला जाएगा। उसके बाद 50 लाख जो बैलेंस होगा वो अमाउंट ऑफ डिमांड डिस्प्यूटेड हो जाएगा, इस एरिया में आएगा। एडमिटेड अमाउंट का पेमेंट आपने कैसे किया है वो आ जाएगा यहाँ पे। प्री डिपॉजिट 10% का आपने पेमेंट कैसे किया, कैश लेजर से किया, क्रेडिट लेजर से किया, ये आपको यहाँ पे पोस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। वेदर द अपील इज फाइल आफ्टर द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड, अगर कोई पीरियड ऑफ डिले है, सपोज 3 मंथ्स के बियॉन्ड है, तो ये आपको पीरियड ऑफ डिले मेंशन करना पड़ेगा। रीजंस ऑफ डिले आपको अलग से कनेक्शन देना पड़ेगा। कंटिन्यूशन ऑफ डिले, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू टू अंडरस्टैंड, कि अगर आपने कोई भी डिले फाइल किया सपोज 3 मंथ्स के बाद, आप सोचे 4 मंथ्स का टाइम है, मैं बोलता हूँ ऐसा नहीं है, यू हैव ओनली 3 मंथ्स टू फाइल एन अपील। 1 मंथ इज द कंडोनेशन ऑफ डिले के साथ आपको फाइल करना पड़ेगा, जहाँ पे आपको जो भी रीजंस लगता हो, अकाउंटेंट ऐसा प्रॉब्लम आ गया, अकाउंटेंट छोड़ दिया, फैमिली हेल्थ इश्यूज, ये इश्यूज वो इश्यूज, जितना इश्यूज है सारा डाल के आप एक एनेक्स्चर ही बनाएंगे, जहाँ पे कंडोनेशन ऑफ डिले इज वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील, नॉट आफ्टर 4 मंथ्स ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील। सो कंडोनेशन ऑफ डिले रहना चाहिए, एंड देन यू कैन गो फॉर द अपील फाइलिंग। सपोज व्हाट हैपेंस एट टाइम्स, व्हाट हैपेंस कि आपने अपील फाइल कर दिया एंड देन यू सॉ एनी रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट, और आपका मैटर को लेकर ऐसा आता है कि सर ये अपील हमको विड्रॉ कर लेना चाहिए, और विड्रॉ करके इसको पेमेंट कर देना चाहिए, एंड वी डोंट नीड टू गो फॉर द अपील। द क्लाइंट से वी डोंट नीड टू गो फॉर द अपील एंड वी वांट टू विड्रॉ। सो कोई भी अपील आप विड्रॉ कर सकते हैं बिफोर इशुएंस ऑफ शो कॉज नोटिस और बिफोर इशुएंस ऑफ ऑर्डर,
एप्लीकेशन ऑफ विड्रॉल आपका आ सकता है, आप अप्लाई वहीं पे पोर्टल में आता है एप्लीकेशन विड्रॉल, आप विड्रॉ कर सकते हैं। बट अगर आपका GST APL 02 आ गया है पोर्टल में, तो आप विड्रॉ के लिए डाल सकते हैं, बट वो अपीलेट अथॉरिटी वहां से एक्सेप्टेंस देगा या अप्रूवल देगा तो ही आप विड्रॉ कर सकते हैं। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. So this was my whole session all about the GST appeal and filing of appeals, defending notices, where I have shared my practical experience with you all. And thank you so much for being a patient listener. And I think 33 people joined, 34 people are there till now. I think that's a plus point from my end, that I'm able to deliver whatever I wanted to. And thank you so much. So I would love to take any. Thank you so much, sir, for the session. So, first of all, let us take any questions. If any of the participant have any question or query regarding the session or anything related to GST, they can write down their question in the chat box, or they can raise their hand so that I can allow them to speak. So, sir, one question I can see over here. Hmm. What is DRC 06 and what is the ground we should take for imposition of penalty for delay in filing GSTR1? What is okay? The RC 06 is basically a reply you make whenever you receive a show cause notice. So Mr. Ananda Rao sir is there. Okay, whenever you make a reply in show cause notice or DRC 1, so you make a reply in DRC 06, and for the imposition of penalty for delay filing in GSTR 1, I think that's a very specific question you are asking. It's a general penalty, 25,000 people generally taking it, but as on date, there is no solid ground to it because there is nothing very withhold thing where you can actually defend this matter. So I don't find anything important in this penalty of delay filing of GST1 if you have really not implied the law as on date. So it's very difficult to take any ground on this because interest ho gaya, late fee ho gaya, right? If the matter is pending, so you cannot take anything in defense factor. Thank you. Any more question from any participant? Nothing for now, sir. Everybody is asking for the PPT, so I guess you can attach the PPT in the chat box itself. Yeah, sure. Just chat box, how to In just the attach it? right corner, there is a icon for the file icon is there on the right hand side corner in the chat. Okay. Just a second. Yeah. And you can share the same with me also so that we can circulate via EIRC to all the participant in their mail ID also. So Yes. both ways we can do it. Yes, absolutely. I would love to do that. I'm just making it a PDF file so that it is better for everyone Sure, to. sure, sure. So meanwhile, you make it a PDF file. There's another question: what to do to convert ourselves from 74 to 73? That is the question asked by Brajesh Kumar Srivastava ji. Okay, I would love to answer this. It's a very. It's a, To answer, Pradeep ji, recording will be available because we at AIRC we are getting the session recorded and it will be uploaded and informed to all the participant as well as in general public. Over to you, Rohit ji. yeah, I'm just uploading it. Just confirm, sir, if there is anything there. Yeah, so there was a question regarding conversion of 74 to 73, sir. 74 to? 73. Okay. So basically, मैं वही you will receive the PPT once. Just confirm Yeah, me once. yeah, received. Thank you, sir. Okay. Thank you. So, 74, suppose 74 notices orders you get because of the three reasons, right? There is a fraud, willful misstatement, or suppression of facts. But if your intent and if your reply or anything in that has not been taken into 74, you have not done anything which is relevant to fraud, willful misstatement, or suppression of facts, you can use section 75 to say that कि सर वी हैव ऑलरेडी डिक्लेयर्ड सपोज आपने GST 1 and 3B का डिफरेंस है, ठीक है, आपने अपना एग्जाम्पल देता हूँ, आपने 1 में 1 करोड़ रुपए किया और 3B में आपने 80 लाख रुपए टैक्स डिस्चार्ज किया,
आपको पता है कि सर आपने 1 करोड़ रुपये आपने बोला है और 80 लाख डिस्चार्ज किया है, सो आपका फ्रॉड तो आपके एंड से है नहीं। अगर आपको फ्रॉड करना होता तो आप जीएसटी में एक 80 लाख रुपया बोल रहे थे, बट ऑफिसर के इंटेंट में ये हो जाता है कि वो फ्रॉड है एंड ऑल। सो आपको सेक्शन 75 सबसेक्शन 2 को यूज करना होता है और बताना पड़ता है डिपार्टमेंट को, इट्स नॉट, ओनस इज नॉट ऑन अस टू प्रूव दैट वी आर नॉट फ्रॉड, द ओनस लाइज ऑन द डिपार्टमेंट इटसेल्फ टू प्रूव दैट वी हैव डन। So anything which you have already declared in any returns, maybe 3B, 2B or 1 or 3B, 9C, कहीं पर डिक्लेरेशन किया हुआ है, सो आप एक्चुअली फ्रॉड नहीं किए हैं। अगर आपने पूरा सप्रेशन ही दे दिया है कोई चीज़ को लेकर, तो दैट्स अ डिफरेंट केस। बट अगर आपने डिक्लेयर किया हुआ है, जैसे मैंने देखा है, आई वॉज हैंडलिंग मैटर इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में क्या ट्रेंड है अमित सर, मैं बताता हूँ आपको। वहाँ पे सारा नोटिस है 74 में ही आता है, मतलब 73 का कॉन्सेप्ट ही नहीं है वहाँ पे, क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं लोग 73 वाले। बोला 73 सेक्शन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता वो भी उनको नहीं पता, तो सारा नोटिस 74 में उन्होंने देना है। तो वो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। किसी भी अगर कोई एमनेस्टी आया आज आया, हो सकता है एक्सटेंड भी हो जाए एंड ऑल, राइट, इट इज डिफिकल्ट फॉर अस टू चैलेंज दैट। बट आई थिंक whenever you receive an order, you should challenge and you should mention the onus is not on us, the onus on other people, and we should mention कि we have declared already, so there is no बिल्कुल misstatement or suppression of facts. Thank you, Sir, sir. one more thing, like इसी का follow-up question is there. So suppression of facts is a very broad term, number one. And number two, if department says कि during the proceeding, initial proceeding, like DRC 01A का जब आ रहा है, so they said कि जो हम लोग ने document मांगा sir, that you haven't fulfilled. So accordingly, that will be considered as suppression of fact because you haven't given the sufficient document over there. So regarding this, how to deal with it? नहीं नहीं, एब्सोल्युटली राइट सर। मैं बॉम्बे में एक मैटर हैंडल कर रहा था, मैं बताता हूँ। उसमें उन्होंने क्या लिखा, उसमें उन्होंने लिखा, मेंशन किया ऑर्डर में कि एज बिकॉज वी हैव टोल्ड यू टू पे द टैक्सेस in pre-show cause notice and show cause notice and you have not paid taxes, so I feel that you are doing a fraud by not listening to the department and hence the order is under section 74। अब आप बताओ सर, ऐसा वेग चीज का मतलब, मैं बोले सर आप आत्मा हो, आप परमात्मा हो, अब क्या हो जो मैं आपका बात मानूं, और आप जो बोले आप भगवान हो क्या हो कि मैं आपका बात मानूं, मैंने पेमेंट नहीं किया तो मैंने फ्रॉड किया। तो देखिए, कोई कोई चीज को आपको बहुत लॉफुली चैलेंज करना होता है, राइट, एंड यू हैव टू चैलेंज दैट इन दैट इंटेंट। आप तीनों पार्ट को ब्रेक करो। मैं मतलब हाउ माई प्रोसीजर इज, मैं आपका तीनों पार्ट को ब्रेक करता हूँ कि सेक्शन 74 में ये 3 पार्ट है, बिल्कुल मिसस्टेटमेंट, सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स ऑफ फ्रॉड। अब मैंने क्या किया, एक टेबल मेरा रहता है कि मैंने क्या क्या किया, मैंने डिक्लेयर किया ये, अब मैंने फिर बगल में ऑफिसर का डालना होता है कि सर ऑफिसर का ऐसा लगता है। सो वेन एवर यू गोइंग टू हायर फोरम लाइक अपीलेट अथॉरिटी के पास जा रहे हो, अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास जा रहे हो, सो दैट सिंपल चार्ट कैन रिफ्लेक्ट द ओवरव्यू ऑफ द मैटर कि दिस इज द मैटर सर, ये मैंने, इन्होंने ऐसा बोला, मैंने ऐसा किया और ऐसा हुआ। एंड ट्रस्ट मी, it's my practical experience कि lot of notices are getting dropped from 74 to 73 by the appellate authority. If you have the conviction and you can have the withhold कि आप बोल सकते हो और बता सकते हो कि sir there is no intent of fraud at all. So I feel that that is the matter, sir. Thank you so much. And to answer Brajesh Kumar Srivastav ji regarding putting the registration number like membership number while doing the June registration, so sir, we are not limiting this particular technical session to only the CA fraternity, but all the student as well as the other professionals. So it will be difficult, but again, non-mandatory field we can do it. So we will just look into and talk with EIRC regarding the same. And I think, sir, that's all. The session was beautifully explained in terms of the theoretical part as well as the practical scenario regarding the various cases and how to tackle the notices, reply to it, and if appeal is required, how to go about it. So thank you so much, sir, for the such a wonderful session, and thank you all the attendees for attending this today's Golden Chacha session on GST litigation strategies. And obviously, a special thank to our speaker of the day, CA Rohit Prasad ji. Your expertise in navigating GST notices and appeal was invaluable. We really appreciate your practical insight and clear explanation. Thank you so much. Thank you so much, sir, for inviting me and taking this forward. Amit ji, you are taking on 101 sessions. You will be there. I think it's a lot of commitment towards the profession and towards the fraternity. And my heartfelt thanks to Vishnu sir and all the committee members for taking such a good charcha. I think this golden charcha cannot be possible without this golden man, Mr. Amit ji, behind this back. And thank you so much. It was really love interacting with you all.
And feel free to reach out for any questions out there if you feel that I could be of any help. So Thank you so much for your kind words, sir. And all the credit goes to AIRC, the attendants, and obviously speaker like you, sir, for making the session. So thank you once again, thank you. Rohitji, and thank you for the participation. And we look forward to seeing you again on the next Golden Chacha. And to all the participants, let us catch us again on the 6th of August, that is the Wednesday at the same time, 5 to 6, with another speaker on another topic. Thank you everyone for joining, and thank you Rohitji for Thank such a you. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you.